let us go step by step and understand that what Know Your Talent as a career counseling and child development company does. We purposefully expanded our domain just from some testings and career counseling to total child development. This came out of an idea that once a child or parent is stepping in with Know Your Talent with a fruitful solution or outcome, जो कि होता है कि हम नर्सरी प्री प्राइमरी से बच्चे को जब से स्कूल भेज रहे हैं, तो एवरी पेरेंट शुड बी अवेयर ऑफ द पर्पस कि हम क्यों भेज रहे हैं. अल्टीमेटली हमें एक सस्टेनेबल वर्थवाइल सेटिस्फाइड एक प्रोफेशनल को बनाना है, एक अच्छे इंडिविजुअल को, एक अच्छे इंसान को बनाना है. और इसीलिए हम स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग्स और न जाने क्या क्या सब करवाते हैं अपने बच्चों से. लेकिन पर्पस इज दिस. अब इस पर्पस में पेरेंट्स समटाइम्स गेट लॉस्ट इन द सिस्टम, क्योंकि उस सिस्टम में ट्रैप हो जाते हैं. मतलब वो उसके आगे नहीं सोच पाते, क्योंकि वो उस दायरे में ना बहुत फ्रोजन हो जाते हैं. तो हमें कई बार जो है बच्चों को थोड़ा पर्सनलाइज्ड करके देना पड़ता है कि हाउ आर वी गोइंग टू develop or how a child should be developed in a particular way. So Know Your Talent came up as a project when I struggled to get into more competent type of parenting. I was looking for some good solution jahan pe somehow I should understand my child well so that I bring her with the best of my abilities. Out of that, this company came into existence. It is as old as my daughter is, almost 15 years now, 2010. 2011 it started, and eventually we kept on engrossing or absorbing various any and everything. For me it was any and everything that should be coming up in the board, or any and everything of the expertise should be coming who are contributing to build the outcome that is a successful, satisfied, happy professional, okay, or an individual. So it is, that's why we always call this company as a holistic child development and mental health center. Okay, so we are not only educating kids but parents more, because ultimately parents are playing an active role in shaping their child. So this was solely started by me, and there are many trainers, many counselors, they are attached, but as far as the top the decisions or everything happening in me in this company lies in my hand. And what we want to do is placing people in their right area of expertise so that they achieve the outcome. We are not going to forget that outcome, that हमें उनके ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी में इंडिविजुअल को बिठाना है. जैसे मैंने अभी भी आपकी डीएमआईटी की, सो बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी एरिया क्या है. कई बार पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, मतलब समहाउ दे डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, और उसी वजह से वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रह पाते. आई विल टेल यू द एग्जाम्पल कि हम 500 लोगों का इवेंट करें, 100 लोगों का इवेंट करें, 2000 लोगों का इवेंट करें, I always ask when it is a parents event कि कितने लोग आप में से satisfied और happy है with whatever profession they are doing. I don't remember more than 10 hands coming up. Mostly stage पर बैठे रहते हैं उनके आते हैं, और कुछ फ्रंटों में कुछ एक रैंडम लोग के आ गए. Never more than 10, कभी नहीं रिकॉर्ड रहा है. क्यों? क्योंकि सबने ऐसे ही करियर कर लिया, मैंने भी ऐसे ही कर लिया, राइट. सो समहाउ हम उसको ना, हमारी कॉम्पिटेंसी को ना समझ पाए, हमने किसी ने बोल दिया, कर लिया. बाय चांस luckier or the successful or winners are those who have happened to choose or pick up something which was their core competency. Here I'd like to give you an example. Dr. Ved Prakash Mishra sir, who is a chancellor, advisor to the chancellor of the Tamil Deemed University, Karad University, and he had been pro-chancellor and chancellor of various universities. जब हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया था DMIT का, तब हमने उनकी सबसे पहले टेस्ट ली थी. we started this project with DMIT. So हमने सबसे पहले उनकी टेस्टिमोनी ली थी, हमने उनका टेस्ट किया था, और उनके टेस्ट में मेडिकल was not so strong, और वो करियर चार्ट हमने उनको दिखाया था, और वो उनके केबिन में काउंसलिंग हुई थी. तो मैंने बोला सर ये आपका मेडिकल तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो उन्होंने कहा मैं कौन सा डॉक्टर हूँ. And he's true. He did not open a OPD or clinic or hospital. He went strategically into administration,
management, education, okay, become a tutor or trainer or mentor, and likewise. So he did not go into any other domain than what was complementing and public speaking. Linguistic was very high. वो वाणीपुत्र ऐसे ही नहीं बोलते उनको. Linguistic was very high because कि उनका वो ability बहुत high था. Right? Now, what I want you to understand is कि from there we started और उनका टेस्टिमनी तब से हमारा टेस्टिमनी अबाउ 90% लगभग मेंटेन रहा या 80%. ठीक है, तो ये टेस्टिमोनीज तब से हमारी बरकरार रही है. यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ऑफर करते हैं वो ये है क्योंकि हम आप जैसे लोगों के साथ और ज्यादा बच्चों को जिसको इस तरह की हेल्प की जरूरत है उन तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हम वो 99% पेरेंट्स में आज की जनरेशन ना खड़ी हो कि वो कर रही है जो कभी उन्होंने शायद चाहा ही नहीं था. ठीक है, आई डोंट नो कैसे करियर डिसीजन मेकिंग्स हुए हैं तब, लेकिन अब हम हमारी आने वाली जनरेशन को इस तरह के रैंडम करियर्स में नहीं झोंकना चाहते क्योंकि अब उनका कंपटीशन दूसरे इंसानों के साथ में नहीं है, उनका कंपटीशन मशीन और टेक्नोलॉजी के साथ में है. सो अब हम उन्हें कोई एक्सपेरिमेंटल करियर नहीं कराएंगे और ना हम होने देना या करने देना चाहते. तो ये पेरेंट्स को अवेयरनेस का भी एक एफर्ट है कि पेरेंट्स शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि अपने बच्चे के लिए करियर कैसे चुनना है. वरना फिर वेरी सैडली वी सी टाइम एंड अगेन. अभी नागपुर साइड का एक बंदे ने 99.99 परसेंटाइल नीट क्वालिफाई करने के बाद सुसाइड कर ली बिकॉज ही वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. सो दिस शुड नॉट हैपन विद एनी अदर चाइल्ड. सो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है दैट इज DMIT, इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, जो लर्निंग चैलेंज बच्चों के लिए आता है. ठीक है, हर किसी का डिटेल आएगा इसके बाद में. एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक टेस्ट, जनरल करियर काउंसलिंग फॉर बेसिकली टीनेजर्स एंड काउंसलिंग फॉर एडल्ट्स एंड प्रोफेशनल्स. सो मेनी अ टाइम्स करियर स्विच के हिसाब से जैसे कल उन दोनों ने किया. सो वो इसलिए ही किया क्योंकि उनको भी एक करियर अपग्रेड चाहिए, उनको भी एक नेक्स्ट लेवल जाना है एंड they went for it. So we have got many young adult or even grown up adults who are opting for this kind of counseling. So yes, we do have that kind of, we have got short tests also, namely RIASEC. We also have midbrain activation, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के फॉर्मेट्स अवेलेबल, IQ टेस्ट्स के बहुत सारे वाइड और डाइवर्स ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है. गर्भ संस्कार इज अनदर फ्लैगशिप, बट ये हम बहुत इसको मार्केट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे लिए बिजनेस नहीं है. मेरे सामने अगर एक गर्भ संस्कार का के लिए क्लाइंट आके बैठेगा ना, मैं उसको भी उतना ही पढ़ाऊंगी बिकॉज आई जस्ट लव डूइंग दैट, क्योंकि उसका रिजल्ट होता है आपको जैसे चाहिए वैसा बच्चा मिलेगा और वो मिलता है गारंटी के साथ में. सो गर्भ संस्कार इज जस्ट आई लव डूइंग इट, बट मैं उसको बिजनेस की तरह नहीं करती. मेरे पास एक भी रहेगा तो मैं उसको सही पैसे में उतना ही अच्छा पढ़ाऊंगी. बट हाँ, मैं इसको ज्यादा लोगों तक ले जाना चाहती हूँ. वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि कॉर्पोरेट्स में जरूरी होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है. काउंसलिंग में ऑल सॉर्ट्स ऑफ काउंसलिंग, लगभग रिलेशनशिप, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ. Then you would see the long list of various tests because we have got RCI certified psychologist to assess and do these kind of tests. तो वो हमारे पास में है अवेलेबल. तो एनी LD टेस्ट के लिए जो एक बेसिक टेस्ट लगती है जिसके बाद वो डिसेबिलिटी का अगर उनको सर्टिफिकेट भी लेना होगा तो वो सारी टेस्ट हमारे पास में अवेलेबल है. सो इस तरह से हम नॉट ओनली इस तरह के नॉर्मल स्कूल्स तक जाना चाह रहे हैं, बट हम स्पेशल स्कूल्स तक भी जाना चाह रहे हैं ताकि एक बेहतर बंडल अप सर्विस उनको दे सके और एक बेहतर रिजल्ट, यानी बच्चा आज जैसा है उसमें सुधार हो आगे में चलकर. Yes, I will not theoretically go much about Know Your Talent, but what all I can say it, just Google it. Yesterday, my mother was like, we are taking review of some consultants and मैं इसके कॉल सेंटर्स के कुछ रिव्यूज के बारे में रिसर्च कर रही थी. तो माय मदर सेड कि जेमिनाई बता रहा था कि इसका ये है वो है. तो मैं मम्मी बोलती है तुम्हारे नो टैलेंट का क्या आता है. मैंने बोला अरे हाँ मैंने तो उन्हें देखा है, लेट मी ट्राई. तो मैंने जस्ट गूगल असिस्टेंट से पूछा कि गिव मी नो योर टैलेंट नागपुर का रिव्यू एंड दे रेटेड अस वेरी हाई and they uploaded upheld us as we are very passionately working over DMIT
DMIT has mixed response, but our center's DMIT as it is concerned, it is highly reviewed, rated, and of course Google ने अपनी जेब से तो नहीं डाला होगा ये सारी चीजें. Of course जो clients रिव्यू देते हैं, जैसे आप भी देंगे रिपोर्ट के बाद, तो उसके बेस्ड वो कंपलसरी है. तो उसके बाद उस बेस पर उन्होंने हमको जो है हमारे बारे में जो भी कहा है, तो आई वुड नॉट टेल अबाउट अस. यू कैन गूगल इट, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट रियली इट मीन्स. When I say that we get or cater the highly accurate career और testings और हमारे रिपोर्ट के रिजल्ट या रेशियो ये है, इसका मतलब मैं नहीं कह रही हूँ. इसका मतलब है कि हमारे पास हर जो क्लाइंट है, देखो वीडियो हर कोई नहीं देता है, लेकिन रिव्यू हम हर किसी को देने बोलते हैं. वीडियोस भी है, लेकिन काफी लोगों के वीडियोस हैं, लाइक इट्स लाइक शुड बी इन थाउजेंड्स, बिकॉज इट्स बीन ईयर्स नाउ वी हैव बीन केटरिंग दिस इंडस्ट्री. तो हमारे पास बहुत सारा वीडियोस है जो एज अ टेस्टिमोनी हमारे पास रिकॉर्डेड है. पेपर पे उनके सबके फाइल्स वो कंपलसरी है, पेपर वर्क कंपलसरी है. तो हम जो भी बोलता है कि DMIT की एक्यूरेसी, DMIT के बारे में ये है, हम बोलते हैं कि भाई हम और क्या कर रहे हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हमारे क्लाइंट बता सकते हैं. आप रिव्यूज देख लो, तो आप लोग बोलते हैं गूगल पे रिव्यू भी फेक आते हैं, क्योंकि वो आते हैं, बट हम बोलते हैं कि चलो पेपर तो नहीं फेक आएंगे. मतलब अगर हजारों पेपर्स की फाइल्स बनी हुई है, इतनी सारी अभी भी मेंटेन्ड है, तो वो तो फेक नहीं हो सकती, वीडियोस भी फेक नहीं हो सकते. तो वी हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन दिस टेस्टिमोनी साइड. ठीक है, कि हमें सबका टेस्टिमोनी कंपलसरीली मेंटेन रखा है. व्हाट वी वांट अल्टीमेटली इज कि स्टूडेंट्स को एक परफेक्टली मैच्ड कोर्स हम दें, सही कॉलेज की जानकारी उन्हें दे, सही तरह का एडमिशन सपोर्ट दे, और सही करियर गाइडेंस दे. और पेरेंटिंग हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोग जो है अचीव कर सकते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी चाइल्ड, क्योंकि जिनके दो बच्चे होंगे वो भी समझ सकते हैं कि उनके दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा अलग होता है, और हर किसी के फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं, और उसी पर से जो है ये साइंस वर्क करता है. अब इसके लॉजिक्स और रिसर्च पे जाना है, आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं वो एक्सपीरियंस की बात करते हैं. वी आर एक्सपीरियंस्ड कि दिस इज व्हाट हैड बीन हैपनिंग एंड दिस इज द रिजल्ट्स दैट आर क्रिएटेड. मतलब अगर हमने बोला है कि ये इस तरह से इसका करियर ट्रैक बनेगा, तो वो वैसा ही बनेगा. अगर नहीं बनेगा ना, तो वो CA करने के बाद भी वापस आएगा कि नॉट हैप्पी, तब भी फिर हम उसको वापस उसके डोमेन में डालेंगे. सो दैट्स बाउंड टू हैपन. और उसके लिए मैं कई बार जो ड्रॉप आउट, स्विच ओवर, इस तरह के जो लोग हैं, जो अभी अभी देखो ये जो अभी सीजन चल रहा है ना, अभी 12th के एडमिशन हो गए, सब हो गया, या 11th के भी, तो अब आ रहे हैं जो जो जिन्होंने साइंस ले लिया, JEE ले लिया, अब नहीं हो रहा है, इस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, जिन्होंने कोई कोर्स चुन लिया वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको आना ही पड़ेगा. और मैं जो लोग आते हैं ना इस तरह का यूटर्न लेके, मैं उनको बोलती हूँ मोस्ट वेलकम. आप वो पूरी घुटन भरी जिंदगी से बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने 1 साल के लालच में अपनी जिंदगी खराब करना नहीं चुना, या दिखावे के चक्कर में आपने नहीं आए. आपने वो स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे नहीं बन रहा है, मैं नहीं करूंगा. आपने करियर काउंसलिंग सीख किया. इसमें कई बार पेरेंट्स को ये भी समझ में आता है, कई बार पेरेंट्स को क्या लगता है, बच्चे के स्कोर्स नहीं आते, तो पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ता नहीं है, लेकिन उसकी एबिलिटी अगर नहीं होगी तो वो डाउट भी क्लियर हो जाता है. अब कई बार पेरेंट्स की फीडबैक से हमने निकाला कि हमारे पास कुछ प्रोफेसर और टीचिंग लाइन के लोग आए, उन्होंने अपनी बच्चों की टेस्ट कराई. उसके बाद हमने कभी इतना मतलब उसको क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था. उन्होंने कहा मैडम आपका जो ये पेज नंबर 16 है, जिसमें हम लोग अलग अलग एबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन एक डिटेल में देते हैं, तो उसमें बोले मैडम ये पेज और इसकी मार्कशीट बोले सेम है. बोले सेम है. तब से हमने नोटिस करना चालू किया कि जो स्कोरिंग रेंज हमारे DMIT के वो पेज नंबर 16 आपको पता होगा, जहाँ पे लोब्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसमें परसेंटाइल वेटेज काउंट होता है, वो पेज और बच्चे की मार्कशीट ऑलमोस्ट सेम होगी फॉर श्योर. तो ये हमने भी ऑब्जर्व करना शुरू किया. कुछ पेरेंट्स ने ऐसे आके कंट्रीब्यूट किया कि मैडम हमने ये देखा है कि जब हमने जैसे कुछ बहुत जैसे मनिहार करके एक है, वो फ्रेम्स बनवाते हैं, डोर्स के सिर्फ फ्रेम्स का मैन्युफैक्चरिंग है उनका. उनके दोनों बच्चे छोटे छोटे थे. अभी दोबारा काउंसलिंग के लिए आई थी, 10th में थी उनकी बच्ची, बचपन से हमारे पास आते हैं. उन दोनों की म्यूजिकल बहुत हाई निकले थे. मैंने बोला इनका म्यूजिक बहुत हाई.
वो उन्होंने इतना अच्छा किया म्यूजिक में, मतलब अभी भी सीख रहे हैं वो और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनके टीचर वर सरप्राइज्ड कि इतने फास्ट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक कैसे सीख गए। बिकॉज कि मैंने उनको बोला, उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था कि बच्चों का म्यूजिकल हाई होगा। अब उस इंटेलिजेंस का करना क्या है, प्रोफेशनली उसको कैसे लाइन अप करना है, वो मैंने अभी जब 10th में काउंसलिंग के लिए आया तब मैंने बताया कि प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि म्यूजिक बोले तो थोड़ा इनकन्वेंशनल करियर होता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी कैसे लानी। तो वो मैंने उनको बाद में अभी 10th में समझाया। क्यों? क्योंकि मैं तब समझाती तो मुझे नहीं पता अभी आज एआई आया है, मुझे नहीं पता था ना तब क्या होने वाला है जब 8 साल पहले उनकी अगर काउंसलिंग हुई होगी। तो ये डायनामिज्म ऑफ जो करियर है या फील्ड्स है, इसके साथ सिंक्रनाइज बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार वी जस्ट मेक देम विजिट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर 4 या 5 साल के बच्चे ने टेस्ट कराई हमारे यहाँ पे, तो हम उसको बोलते हैं कि 7th में आओ, क्योंकि प्री टीनेज उसके दिमाग में करियर घुसाना जरूरी है, वरना बाकी चीजें घुस जाएंगी अनवांटेड। तो प्री टीनेज एक बार फिर से आओ, और पहला उसके पहले का पूरा टाइम जो होता है, अगर पेरेंट ने डीएमआईटी की है तो वो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ कर बहुत अच्छे से अपब्रिंग करेंगे। अभी हमारे पास में चंद्रपुर में बहुत, गढ़चिरौली चंद्रपुर के कुछ किसी रूरल एरिया के उनका मेरे ख्याल से राइस फैक्ट्री कुछ है, राइस मिल है। अपने दोनों बेटियों का उन्होंने टेस्टिंग कराया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट मैन डिड नॉट सीम टू बी वेरी एजुकेटेड, बट ही वाज सो अवेयर कि हमें हमारे बच्चों के बारे में बचपन से जानना है ताकि हम उनको बेटर अपब्रिंग करेंगे। और जब मैंने उनकी काउंसलिंग की और जब उनको उनके पेरेंटिंग के पैरामीटर्स बताए, बैक ऑफ द माइंड बोला अब देखिए करियर ऐसे ऐसे टाइप के बनेंगे, लेकिन अभी 10 साल बाद देखेंगे क्या हो रहा है। अभी अगर सेकंड में है, थर्ड में है, 6 साल की, कल उनकी एक बच्ची थी जो 6 साल की थी, उसका काउंसलिंग किया। उसके पहले उनकी एक बेटी थी जो जो 2 साल पहले आई थी, तब उसका काउंसलिंग किया। छोटी का भी टेस्ट करके रखा था लेकिन काउंसलिंग नहीं करा था, अभी कराया उन्होंने। तो डीएमआईटी का काउंसलिंग टेस्टिंग कभी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम टू टाइम बदलता जाता है। तो उसको फील्ड के साथ रेलेवेंट बनाने के लिए हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं कि आपने अगर कितनी भी बचपन में आप टेस्ट कराओ, आप बार बार काउंसलिंग के लिए आके उसका अपग्रेडेड अभी एप्लीकेशन कैसे करना है वो आप समझ सकते हैं। तो वी आर ऑलवेज देयर लाइक हैंड होल्डिंग। देयर आर मल्टीपल काउंसलर्स विद अस हु आर डॉक्टर्स, बट यूजुअली एक जिसके साथ जो काउंसलर अटैच्ड रहता है वही उसको कैरी ऑन करता है। उसके बावजूद भी हम काउंसलर नोट अच्छे से रखते हैं ताकि हर काउंसलर को नए से नए शुरुआत करना पड़े, उसको सब पता रहेगा उसके बारे में। सो देर इज अ काउंसलर शीट ऑल्सो विच इज मेंटेन एंड विच इज शेयर्ड व्हेन द अदर काउंसलर को अगर वो केस हैंड ओवर करनी पड़ी है। फॉर्चुनेटली हमारे काउंसलर कभी चेंज नहीं हुए, दे आर ऑलवेज देयर, दे आर डॉक्टर्स। सो DMIT had been one of the most strong and sustainable tools for us so far, and it has created tremendous results. इसमें आप धर्मपेट महिला की डायरेक्टर नीलिमा बावने मैम, जो खुद अपनी करियर काउंसलिंग के लिए एट द एज ऑफ 53 आए थे कि मुझे फोकस क्या करना। उसके बाद वो सभापति भी बने लक्ष्मीनगर जोन के, उसके बाद अभी वो प्रेसिडेंट भी है धर्मपेट महिला के। सो शी वॉज टॉट दैट व्हाट इज टू बी फोकस्ड नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट दैट दिस इज व्हाट वी विश कि हमारा मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन अभी इंडियंस आर, हमारा एवरेज इंडियन एज इज 28 years। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो सही करियर चुने। हम नहीं चाह रहे कि उनके पेरेंट्स की तरह वापस उसी सीट पे वो बैठे कि वो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, दे वी वांट टू मेक देम अवेयर कि भाई मोर देन 25,000 करियर ऑप्शन अवेलेबल है, और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर करियर नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर कमाते ऐसा नहीं होता है। और विदर्भ के पेरेंट्स को स्पेसिफिकली ये समझने की बहुत जरूरत है कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग दो ही फील्ड दुनिया में नहीं होते और भी फील्ड्स होते हैं, राइट। सो वी वांटेड के हर समय हर पल जो है हमारे पास में जो है ये डेटाबेस और इसकी पॉसिबिलिटीज, इसके ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। वी गॉट मोर देन 300 टाइप्स ऑफ न्यू एज करियर जो ऐड होते जा रहे हैं। वी गॉट मोर देन 40,000 कॉलेजेस, वी हैव गॉट मोर देन 600 कोर्सेस। ये तो बहुत ही टेंटेटिव फिगर है, शायद और भी बढ़ गया होगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इज दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस कि इट इज नॉट द फील्ड दैट इज ट्रेंडिंग। मैं जैसे अभी इन बच्चों की बचपन में अगर मैंने टेस्टिंग कराई, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज जो ट्रेंडिंग है वो 10 साल बाद भी ट्रेंडिंग रहेगा, 15 साल में ट्रेंडिंग, लेकिन बच्चा सर्वाइव उसकी कॉम्पिटेंसी पे ही करेगा।
क्योंकि वही एक चीज उसके साथ क्या बोलते हैं हमेशा रहेगी, फॉरएवर रहेगी। तो उसकी कोर कंपेटेंसी को आप अपना टॉर्च बेयरर बनाओ कि भाई ये यही करेगा, और उस हिसाब से उस समय जो फॉर्मेट में वो लेबल रेप आ रहा है, वो तो हम क्या करते हैं कि करियर ऑप्शन XYZ नहीं बताते, हम उसका करियर डोमेन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशनिंग समझाते हैं, जिससे कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको टीचिंग में जाना है, आपको रिसर्च में जाना है, और इस बेस्ड फील्ड में जाओगे तो और अच्छा करोगे। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन व्हेन इट इज कमिंग टू अ वेरी यंगर काइंड ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 15 या 14 के यंगर है। जो बड़ी हो चुकी है, हमें पता है कि डायनामिज्म में अगले 5 सालों में क्या ही होगा, फिर भी कुछ चीजें ओपन रखते हैं, कुछ चीजें फिक्स रखते हैं कि ये तू है और ये तू ही है, और ये तेरी एबिलिटी है, और इसी हिसाब से तू बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो ही नोज कि मेरा डोमेन क्या रहने वाला है, रिसर्च रहने वाला है, एनालिटिकल रहने वाला है, मतलब कि इंटरैक्टिव रहने वाला है, कि क्या डोमेन में मैंने ज्यादा अच्छे से वर्क करना है। वो हम एक बार इस तरह का अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स और पेरेंट्स को दे देते हैं कि दे आर नाउ गुड टू गो टू टेक देयर ओन डिसीजंस अंटिल सम। और हम बोलते हैं किसी भी फील्ड में आपको काम ये वाला ही काम आना चाहिए, जिसे प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो वो समझ में नहीं आता कि जो अच्छा स्पीच देते हैं उनको करना क्या है, दे आर मेंट फॉर ट्रेनिंग्स, दे आर गुड स्पीकर्स, सो दैट ट्रेनिंग इज अ बिग इंडस्ट्री। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनर्स के लिए कोई कोर्स नहीं है, ले देखे HR ही करेंगे वो, लेकिन उसमें ट्रेनिंग जोन में भी तो जा सकते हैं ना। तो हम उनको वो डोमेन प्रोवाइड करके दे देते हैं, और फिर आप क्वालिफिकेशन जो भी है आपके सामने आप कर सकते हो, यू नो वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुली हम उसके लाइफ पर्पस को कैसे क्राफ्ट करना है, कैसे समझना है, वो भी समझा के देते हैं। सो वेरी एक्सटेंसिव DMIT काउंसलिंग एट आवर प्लेस वी आर डूइंग। सो व्हाट वी ऑफर एज अ services is basically child development program. Child development program is a very wide term. It has anything and everything that is required to develop a child. इसमें multiple intelligence training program आ गया, इसमें summer camps आ गए, इसमें winter camps आ गए, इसमें जो mindset workshops जैसे activities आ गए. So any and everything comes under that. Career counseling में counseling based counseling, test based counseling, both types that does exist. Intelligence building program में इट इज वैसे तो एडवाइजेबल फॉर ऑल है, बट वी माइट मतलब जो इंडियन माइंडसेट है उस हिसाब से तो वो लोग लेते हैं जब बच्चों को लर्निंग चैलेंज जाती है। तो उसके बारे में एलाबोरेशन में मैं जल्दी करूंगी। उसके अलावा एप्टीट्यूड या साइकोमेट्रिक टेस्ट है, सारे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स कर सकते हैं इसको। प्रोफेशनल ग्रूमिंग में ट्रेनिंग बेस्ड है, इसमें हमने काफी अच्छे ट्रेनर्स को अपने बोर्ड पे रखा हुआ है, दैट्स मोस्टली आउटसोर्स्ड, कोलैबोरेटेड, एंड सो दैट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, एक ही करने को एक ही इंसान सब कुछ कर सकता है, बट एक्सेल किसी एक चीज में करना पड़ेगा उसको। सो हम दुनिया को अगर नो योर टैलेंट बता रहे तो वी ऑल्सो नो आवर टैलेंट, तो वी हैव हायर्ड ग्रेट टैलेंट्स टू केटर दैट। और DMIT टेस्ट ऑफ कोर्स हमारा बिगेस्ट फ्लैगशिप है ही। सो दीज आर आर सर्विसेज। इसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक है, जो मेरे को लगता है कि जिस तरह का PR उसका हुआ है कहीं ना कहीं, या पब्लिसिटी हुआ है, तो पीपल प्रॉब्ली माइट नो DMIT मोर, मिड ब्रेन मोर देन DMIT, बिकॉज उसका काफी एटलीस्ट अपने एरिया में या अदरवाइज भी अवेयरनेस काफी रहा है। बट जो मिड ब्रेन हुआ है, वो पैरामीटर्स जो है ना आंखें बंद करके उसको दिखने लगेगा। ये एक टेस्टिमोनी है कि हाँ, मतलब वो काफी इम्प्रेस करती है पेरेंट्स को। लेकिन मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि दैट्स नॉट द एंड, दैट्स द स्टार्ट, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ हिज हायर ब्रेन पावर एक्टिवेटिंग। अब उसको नर्चर करना पड़ता है, बात वहीं खत्म कर देती है। 2 दिन के वर्कशॉप में वो लोग उसको अराउज कर देते, एक्चुअली 2 दिन भी नहीं लगते, वो सेम डे 4 घंटे में हो जाता है। लेकिन उसके बाद उस टेम्पो को, उस प्रैक्टिस को मेंटेन करना पड़ता है। तो हमने इस प्रोग्राम को एज अ समर कैंप कराया, लेकिन जब हमने इसको समझा ना अंदर से कि एक्चुअली क्या वर्क करेगा या इसको होना कैसा चाहिए, तब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एनुअल प्रोग्राम में। एनुअल प्रोग्राम यानी कि आप समर कैंप करिए, समर कैंप में मिड ब्रेन करवाइए, क्योंकि अभी भी हमारे पास समर कैंप में मिड ब्रेन का सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो समर कैंप कराइए, उसमें मिड ब्रेन कराइए, और मिड ब्रेन के बाद उसको साल भर उसका प्रैक्टिस सेशन आप कंपलसरी करें। जिसको वो बच्चे को उसका रियल इनकैशमेंट चाहिए ना मिड ब्रेन का,
है, वो बच्चे 10-10 20-20 हज़ार रुपए खर्चा करके प्रिंट किए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद बच्चा वैसे ही होने वाला है। तो वो मेथडोलॉजी से मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हम वो आउटकम तक बच्चे को ले ही नहीं जा रहे जिसके लिए वो एक्चुअली बना है। सो इसीलिए फिर क्या होता है कि फिर वो प्रोडक्ट पर क्रिटिसिज्म आता है, बट मुझे ऐसा लगता है जो प्रोडक्ट रन करते हैं उन पे क्रिटिसिज्म आना चाहिए कि ये मार्केट ही रॉन्ग वजह से हो रहा है, और पेरेंट भी क्रेजीली उसको सब्सक्राइब कर, ऐसा होगा बच्चा आंख बंद करके गाड़ी चले। अरे हाँ, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्वांटम स्पीड रीडिंग है, वेयर आप इन लाइटनिंग स्पीड बच्चा पढ़ के समझ भी लेगा, मेमोरी उसकी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। ये सारे लेवल तक लेके ही नहीं जाते हैं, जबकि ले जाया जा सकता है, तात्पर्य ये है। तो उसके लिए मैंने कुछ मॉडल्स बनाए, ऑफ कोर्स विद ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, ताकि एक कंप्लीट होलिस्टिक चीज मिले। नहीं तो इनकैश तो लोगों ने जब करना था तो बहुत कर लिया, लेकिन उसका एक वर्थ वाइल फ्रूटफुलनेस क्रिएट हो, ये मैं एक चाह रही हूँ। सो यहाँ पे जो अगला है इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबको पता ही होगा कि आइंस्टाइन वाज आल्सो डिसलेक्सिक, ठीक है। सो व्हाट वी वांट इज कि उस लर्निंग डिसेबिलिटी से वो बेवकूफ नहीं साबित हो जाता है, ठीक है। वी स्टिल कैन हैव सम टूल्स और वेज टू वर्क ओवर। और सबको याद होगा कि आइंस्टाइन की माँ ने कभी वो लेटर आइंस्टाइन को नहीं देने दिया जिसमें स्कूल में वो बेवकूफ होने की वजह से उसको निकाला जा रहा है, ऐसा था। एंड मदर टोल्ड अपने बेटे को कि तू इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि स्कूल तुझे पढ़ा नहीं पाएगा। एंड फिर वो सेल्फ स्टडी करके वो ही इज व्हाट ही इज। तो ये चीज हम हमारे जो बच्चे नहीं पढ़ाई में अच्छा कर पाते उनके साथ हमारे पेरेंट ऐसा नहीं करते। वो उनको और क्रिटिसाइज करते हैं और सप्रेस करते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो एक एजुकेशनल सिस्टम के बेंचमार्क को मीटअप करे। तेरे को 20 ही मार्क आए, तेरे को 12 ही मार्क आए, तेरे को 5 ही मार्क आए, वो समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसमें इंटीग्रेट इस चीज को करते हैं कि आप डीएमआईटी करके उसका एक्स्ट्रा करिकुलर समझ लो, ठीक है। एकदम से मेरिट तो आएगा नहीं बच्चा, लेकिन डीएमआईटी करने से आपको उसके वोकेशनल ऑल्टरनेटिव पता रहेंगे कि क्या है, और उस साइड से शांत हो जा कि बच्चा कुछ ना कुछ तो खुद का कर ही लेगा। अब अच्छी बात की लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको कैसे वर्कआउट करना, उसके लिए हमने यूएस बेस्ड जो है इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम विच इज एसओआई बेस्ड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड है, उस मॉडल पर बेस्ड इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम को हमने अक्वायर किया। उसमें ये 200 घंटे का प्रोग्राम है जो 90 कोग्निटिव एबिलिटीज पर वर्क करता है। 4 से 20 साल के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और ये यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और इसमें बच्चे की मेमोरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर चमत्कारिक आई से improvement मिलता है। एंड ऑन एन एवरेज विद इन फर्स्ट और टू और 3 months of implementing this program, 30 to 40% of the academic or scholastic improvement is seen. Besides his personality, besides his confidence, क्योंकि naturally आपको कुछ आ नहीं रहा है, आप पे सब हंस रहे हैं, और जब आपको आने लगता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस या पर्सनालिटी का जो मेकओवर होता है वो बहुत अलग लेवल का होता है। मतलब आप समझिए ना कि एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा किस तरह के यानी सेल्फ पिटी से जाता है, तारे जमीन पर हमने देखा ही है। तो हम ये प्रोग्राम भी रन करते हैं, हम उसका भी बहुत काउंसलिंग करते हैं, उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी देते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत पॉसिबल हो तो हम उसके स्कूल टीचर, उसके ट्यूशन टीचर सबसे बात करते हैं। वी गो बियॉन्ड जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। माना कि मैंने, आप डायबिटिक है, मैंने आपको दवा दे दी, लेकिन मैं डायबिटिक आप है तो मैंने आपको दवा भी दे दी, मैंने आपकी काउंसलिंग कर दी, आपके वाइफ की काउंसलिंग कर दी, उसको कुकिंग की रेसिपीज भी भेज दी कि यही खिलाना है, आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर दिया, ठीक है। आपका और भी कोई रिसोर्स है उस सबको मैंने मैनेज करके दे दिया कि आप इसको ऐसा ही हैंडल करें। वी गो दैट वे। सो इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम में इसलिए शॉर्ट रिजल्ट्स आते हैं, और 40% एवरेज का है। ये 200 आवर्स का प्रोग्राम, ट्यूटोरियल बेस्ड। एप्टीट्यूड टेस्ट ये बहुत फेमस टेस्ट है, सबको पता है। एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक टेस्ट इज वन ऑफ दोस फेमस कैलिबर असेसमेंट टेस्ट विच इज ऑनलाइन, विच इज लाइक क्वेश्चन आंसर बेस्ड। 1.5 घंटे की टेस्ट होती है,
उसमें आपकी पर्सनालिटी, आपकी लर्निंग स्टाइल, आपके स्किल्स, आपके न्यूमेरिकल, लॉजिकल, सोशल, क्रिएटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, ये सारे 8-10 तरह के स्किल्स असेस होते हैं। और उसके असेसमेंट के बाद में ये जो रिपोर्ट बनती है वो बहुत जबरदस्त तरीके की बनती है, विच टेल्स अस the idea. By the way, this is how the type of report that we serve, and इस तरह की रिपोर्ट बनती है। और इस रिपोर्ट में जो है आपको जो सबसे बढ़िया साइड जो मिलता है वो मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहती हूँ कि आपकी सोच जो भी हो, जो आपका करियर क्लस्टर आता है, जो आपको बताता है कि आप अभी किस फील्ड के लिए टॉप में खड़े हैं, किस फील्ड के लिए आप कहाँ खड़े हैं। तो ये जो करियर क्लस्टर आता है, इट स्पीक्स अ लॉट बेस्ड ऑन द आंसर्स दैट यू हैव गिवन कि आपका एप्टीट्यूड किस फील्ड के लिए ज्यादा अच्छे से लाई करता है। उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये वाला पार्ट लगता है, जिसमें जो है एक है उसका इंटरेस्ट, दूसरा है उसका एबिलिटी। अरे इंटरेस्ट तो अपन इंडियन आइडल में लाखों लोगों का इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन जब स्टेज पे आते तो अपन देख सकती कि यार इतना मेहनत किया इसने ये ऐसा गाने के लिए, मतलब तो इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन एबिलिटी भी होनी चाहिए, तब जाकर बेस्ट चॉइस बनती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फैंसीफुलनेस को आप रियलिज्म के साथ जोड़ो कि भाई आपकी एबिलिटी कहाँ लाई करती है। और उसके बाद फिर जब करियर डिसीजन फाइनल हो जाता है तब जाकर यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसके अलावा एक अदर करियर पाथ्स भी आता है जहाँ पे सिस्टम आपको कुछ भी लगे, लेकिन ये चॉइस तो आपने की टॉप 4, लेकिन अदर करियर रिकमेंडेशन में जब सिस्टम अपने करियर रिकमेंडेशन देता है तो उस सिस्टम के बेस्ड करियर रिकमेंडेशन को जो है बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो अनबाइज्ड है। हो सकता है कई फील्ड आपको तो मालूम ही नहीं है तो आप तो चुन ही नहीं सकते, ना सोच सकते। तो ये सिस्टम को लगता है कि ये शायद फील्ड्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अभी ये बंदे ने एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का करियर पाथ चुना है, मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना भी नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई फील्ड होता है क्या। तो यस, ही हैज चोजन दैट इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल एडवाइजर और IR एक्सपर्ट करके ये फील्ड और प्रोफाइल होता है। और इसमें इस फील्ड के बारे में क्या है, क्या बेस्ट साइड है इस फील्ड के। और ये करियर पाथ DMIT करने वालों को भी हम देते ही हैं, बट मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि वी आर व्हाट इज बेटर एंड बियॉन्ड DMIT विद अस इज दिस कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसने इंटरनेशनल रिलेशनशिप चुने हैं तो 10th में हिस्ट्री को प्रेफर्ड करने बोला है, 12th में ऑल सब्जेक्ट और हिस्ट्री कंपलसरी करने बोला है। उसके बाद हायर एजुकेशन में BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, BA 4 या 5 तरीके के BA एंड MA उसने बोल दिया। उसके बाद PhD करने बोल दिया, एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन दैट पर्सन विल बी हैविंग एंड व्हाट काइंड ऑफ नेक्स्ट एंड करियर पाथ में करियर प्रोग्रेशन प्लान भी बना के दिया कि आगे तो कैसे बढ़ेगा, डिग्री की अभी बात भी कुछ तो अपग्रेड होना होगा। सो ये एक बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि जो हम देते हैं वो है करियर पाथ। अब जब करियर पाथ आ गई कि अभी इंटरनेशनल रिलेशन सपोज इसका करियर आ गया, तो अब एक्चुअल फील्ड होता क्या है इसके अंदर में होता है, या मान लो उसको टॉप 4 चॉइसेस में कंफ्यूजन है, तो हमारे पास एक फुल फ्लेश्ड वेरी डायनामिक करियर लाइब्रेरी। डायनामिक करियर लाइब्रेरी मतलब कि एवरी ईयर उसके रेटिंग इंस्टीट्यूशन के, जैसे टॉप 10 UG, टॉप 10 PG, हर फील्ड के इंस्टीट्यूशन है वहां पर, वो चेंज होते हैं, नेचुरली चेंज होते हैं। तो वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, हर साल अपडेट होती है। तो आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि फील्ड क्या होता है, उसमें काम क्या करना पड़ता है, स्किल्स कौन से आने चाहिए, फिर कौन सी इंडस्ट्री में काम मिलेगा, किस तौर से काम मिलेगा, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट आर टॉप 10 इंस्टीट्यूशन, 10th से 12th आगे में कैसे मुझे करियर में बढ़ना है। उसके बाद में UG PG कैसे करनी है, उसमें भी क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। सो इतना अलाबोरेटेड जो है करियर लाइब्रेरी का एक्सेस हम उसको देते हैं, ये लाइफ टाइम एक्सेस होता है और वो एक नहीं कई फील्ड्स को उसमें एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये भी हम हमारे टेस्ट, दोनों टेस्ट के बाद में देते हैं, DMIT और एप्टीट्यूड के। Career counseling is something which is like everyone is requiring more or less, and we are happy कि हमारे पास में 50% वाला भी आता है, 35% वाला भी आता है और 99% वाला भी आता है। तो एसेस इवन MBBS पास आउट भी आता है,
ठीक है. So we get all type of people who are looking for real or good career decision making for themselves, and we are really been able to help them very fruitfully or successfully. Career counseling for adults and professionals, you could see that people after passing certain years in profession, they look for certain kind of upgrade. They need to understand where they should be focusing, and based on that they would like to take some big decisions. So उसके लिए भी हम career counseling उनको करते हैं, उनके individual और मल्टीपल करियर काउंसलिंग सेशंस भी रन करते हैं नाउ, एंड बेस्ड ऑन दैट उनको वो रिजल्ट देते हैं. टेस्ट की ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कि आप आए हो तो आपका टेस्ट होएगा ही. अगर आपका काउंसलिंग से ही आपका हेल्प हो रहा है तो हम काउंसलिंग ही बोलेंगे, टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है. इसीलिए कितना भी कोई फोन पे बोलता है कि हमको डीएमआईटी करानी है, हमको एप्टीट्यूड करानी है, तो हम बोलते क्या नहीं, आप पहले काउंसलिंग करा. And our counseling, career counseling at our place is contrary to our rating review and the market price. We are very low, that is 999 only, so that people do get the solution that they are looking for. And contrary to market, our counseling is not timed. हम घड़ी देख के काउंसलिंग नहीं करते कि 1 घंटा होने के बाद हर 15 मिनट के 2000 रुपये लगने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारा सोल्यूशन सेंट्रिक होता है. हो सकता है कि 20 मिनट में आपको सोल्यूशन मिले, हो सकता है कि 1.5 घंटे में आपको सोल्यूशन मिले, एवरेज में 45 मिनट्स में हो जाता है. तो करियर काउंसलिंग हमारा इस तरीके का होता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी टाइप ऑफ काउंसलिंग में हम कभी घड़ी नहीं देखते, क्योंकि फिर पर्सन जो अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है वो खुल के करेगा ही नहीं, तो हम उसको सोल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे. सो आई डोंट नो इन दैट व्हाट हाउ लाइक क्लाइंट कैन सस्टेन दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग, जहाँ पे आपको हर 15 मिनट में चार्जेस पे करने हैं, तो आप कैसे करते होंगे, आई डोंट नो, बट वी डोंट डू दैट. वी हैव गॉट अ सर्टन कोटेशन ऑफ कोर्स कि पर्सनल काउंसलिंग के अलग रेट्स हैं हमारे यहाँ पे, करियर काउंसलिंग के अलग रेट्स हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन वी डोंट डू टाइम्ड. ठीक है. सो डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट you can Google, but what we can tell with our experience is it is one of the greatest tool to understand and decode what someone is. वो कैसे सोचता है, वो कैसे सोचेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, we can just understand. So DMIT is one of the greatest tool जो कि proven है, जिसका टेस्टिमोनी है ऑन पेपर ऑन वीडियो हमारे साथ तो भी, और it has never went wrong mostly, and it has always stood the test of time. कि जिन लोगों ने डिफाई किया, डिनाई किया, सपोज कि अरे भाई ये नहीं, ये फील्ड ज़्यादा है, वो वापस आए या उन्हें वो करना पड़ा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So let me show you what kind of DMIT report that we do give is this kind of 44 pages report, 350 GSM का cover and 100 GSM का एक पेज is the report. क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि अगर इसमें एक भी पेज अगर खत्म हो जाएगा ना, तो हम दूसरा लाइन में टाइम दें. कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं जाएगी कि इसमें एक भी पेज या क्वालिटी या रिपोर्ट्स का क्वालिटी में कभी कोई फर्क आएगा, एक पेज का भी कभी फर्क नहीं आएगा. कंसिस्टेंटली 100 GSM पे गई है और ऐसी ही गई. ग्राफिक्स चेंज हुए होंगे लेकिन गई ऐसी है. क्यों? क्योंकि DMIT जिंदगी में एक बार बनती है, और एक बार बनने के बाद ये आपको सालों साल. मेरे पास में एक लड़की आई थी 6th में, उसने एक प्राइज जीता था, वाघ महोत्सव हुआ था अपने साउथ सेंट्रल जोन में, और उस पे उसने कुछ प्राइज जीता था एलोकेशन और समथिंग में, और उसमें हमने कूपन्स दिए थे, तो वो आए थे वहां से. तब हमारा बहुत स्टार्टिंग था, 12 या 13 में हुआ होगा ये वाघ महोत्सव मेरे ख्याल से. तो उसको हमने बताया कि बेटा जो है UPSC वगैरह जैसे कोर्सेज कर सकते हैं. 6th की लड़की, उसको ये समझ में आ गया कि मेरा लिंग्विस्टिक बहुत आया है, जो संस्कृत में आउट ऑफ, यानी उसके बाद उसने शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए फाइल कर देना चाहिए था कि उस काउंसलिंग के बाद उसके पापा अभी भी कनेक्टेड है, अभी वो UPSC कर रही है, कि तब से आज तक उसने कभी संस्कृत में उसका 0.001% भी नहीं कटा. ऑलमोस्ट 100%, ऑलवेज. वो लड़की है जो 10th में 94% लाने के बाद भी उसने आर्ट्स लिया, बिकॉज शी न्यू कि व्हाट शी इज गोइंग एंड व्हाट शी इज डूइंग. और उसके बाद उसने 93% के साथ शी स्टूड 3rd इन महाराष्ट्र इन हर 12th.
She went psychology plus Sanskrit and now she is doing IFS. सो तात्पर्य ये है कि इतना बढ़िया से इंसान डिकोड हो जाता है, अवेयर हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है उसकी एबिलिटीज के साथ में, और फिर डेफिनेटली उसका वर्क उसी के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके लेके आता है. सो दैट्स वाई विथ ऑल दिस कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंसेस वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस कैटेगरीज के ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए स्टूडेंट सेगमेंट सबसे ज्यादा आता है. लेकिन बच्चे यानी यंगर एज बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे मान लो अगर आपका एक बच्चा है, ठीक है, जो 7 साल का है, ठीक है, या 6 साल का है, तो एवरेज में 5 साल के ऊपर हर बच्चे को पेरेंट्स को लगता है कि इसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी चाहिए, किसी न किसी क्लास में डाल देते हैं. अब किसी ना किसी क्लास में जब डालते हैं तो वो क्लास कम से कम 500 रुपये महीने का होगा, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 2 से 5 हजार भी हो सकता है. तो कम से कम 500 रुपये लेके चलते, क्या हम सब 500 रुपये महीने का क्लास लगाएगा वो. एक साल में उसने उस क्लास में कितने पैसा खर्चा किया, 6 हजार रुपये. ठीक है, अब हमारे पास डीएमआईटी कितने की होती है, 6 हजार रुपये की. लेकिन आपने डीएमआईटी में क्या समझा, उसमें एक पेज है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी, कि आप अगर आपके बच्चे का लॉजिकल अच्छा है तो आप उसको डांस क्लास में क्यों डालोगे, आप उसको एबेकस या उस तरह के जो क्लासेस हैं उसमें डालोगे, कोडिंग में डालोगे. तो सीधी बात है कि आपका बच्चा साइंटिस्ट तभी से बनना शुरू हो जाएगा. तो जितने बचपन में करते हो, तो आपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो क्लासेस लगाए, जो टाइम पीरियड एज अ पेरेंटिंग के लिए, जो गोल्डन पीरियड जो मैं बोलती हूँ बिफोर टीनेज गोल्डन पीरियड होता है पेरेंटिंग का, वो अगर डीएमआईटी के लाइट में कर लिया तो फिर तो आपको 12 साल के बाद देखने की भी जरूरत नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि कैसे लोगों के साथ रह रहा है, कि बिगड़ तो नहीं जाएगा, कि करेगा कि नहीं. और वही होता है कि छोटे रहते बच्चे तो पेरेंट्स को उतना ज्यादा ध्यान देना, लेकिन अब तो बड़े होने के बाद ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उनको गोल्स पर फिक्स नहीं कराया, उनको राइट अपब्रिंग करके राइट रास्ते पे नहीं लगा पाए. अब फिर 12 साल बाद चिल्ला रहे हो, फायदा कुछ नहीं होगा. जो करना है पहले करना है. जैसे हम बच्चों के लिए चाइल्ड प्लान लेते हैं ना बचपन में, जितने अर्लियर लेंगे उतना फायदा रहता है, वैसे डीएमआईटी जितना अर्लियर करेंगे उतना फायदा रहता है. बिकॉज यू नो कि तुम्हारा बच्चा क्या है और यू नो हाउ टू हैंडल दैट, और कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर डालनी है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है. वो चंद्रपुर गढ़चिरौली छोटे से गांव से आया वाला बंदा, लेकिन इतना अवेयर कि मेरे को मेरी दोनों लड़कियों को बेस्ट बनाना, तो उसके लिए बेस्ट क्या है मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ. दैट्स हाउ ही जस्ट गिव अप. सो जितना चिल्ड्रन जोन सबसे गोल्डन जोन होता है, जितने यंगर एज में करेगा उतना बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स है, एडल्ट्स ऑफ कोर्स, जो टीचर्स हैं उनको भी अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स के लिए एचआर सॉल्यूशंस है. एचआर सॉल्यूशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी कंपनी है या आप कहीं एचआर की तरह काम करते हैं और वहां पर आपको लगता है कि आपके इंडिविजुअल्स या आपके एम्प्लॉयज को एक सही टीम बन नहीं पा रही है, सही प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, सही काम नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज एचआर सॉल्यूशंस. एचआर सॉल्यूशंस में हम अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स की टेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ एक एम्प्लॉयर को भी रिपोर्ट देते हैं कि आपके एम्प्लॉय का कैसे कैसे आपको करना है, कैसे कैसे आपको ग्रो और डेवलप करना है. एंड दिस इज हाउ वी वर्क फॉर प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट्स. Soft skill development, because we always want everything has to be best. That's why the trainer segment भी हमारे पास में बहुत बेस्ट है जो हमने बनाया है. और इसीलिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हम चाहते हैं, जैसे आपने हमने तो देख देख के सीख लिया, अंदाज से सीख लिया, लेकिन हम चाह रहे हैं बच्चों में इस तरह का ट्रेनिंग कराना जो जो बचपन से उनमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए सॉफ्ट स्किल. हालांकि कोशिश हमने बहुत की कि अवेयरनेस और आए इस पर, अभी खास आया नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल एंट्री इज बेस्ट. वी हैव टाइड विद कपल ऑफ इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर हम लोग ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, और माइंडसेट एक वन ऑफ द एक्सटेंशन है, वो इस साल का नया प्रोडक्ट है. इसमें हम लोग जनरली बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मैनर्स एंड एटिकेट, लीडरशिप स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें करा के देते हैं. ये सारी चीजें सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई से भी ज्यादा. आई टेल यू, पढ़ाई से भी ज्यादा. एंड पता नहीं, कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि बस बहुत पढ़ लेने से बहुत कुछ हो जाता है, तो आई वुड डेफिनेटली डिफर ओवर इट. ऐसा नहीं है. आईक्यू टेस्टिंग एक बहुत कॉमन टेस्टिंग है, लेकिन आई वुड कॉल इट वेरी प्रिमिटिव. ये आपके बच्चों को जब तक के क्लिनिकली लर्निंग इश्यूज नहीं है,
तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव नहीं होती। कई बार लोगों को लगता है कि IQ टेस्टिंग से करियर बनेगा या करियर सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। और अगर कहीं कोई दे रहा होगा तो आई वुड नॉट like crossing my limits by saying that that's wrong, because IQ assess your only numbers, memory, language, and social. Only चार category it assess. It does not assess your personality. And जबकि IQ से भी ज्यादा पर्सनालिटी का रोल होता है आपके असेसमेंट, आपके करियर सक्सेस में। ठीक है, तो एक अल्ट्रा ब्रिलियंट या हाई IQ बंदा एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक CA हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, लेकिन उन सबको प्रोफेशन के लिए जो प्री रिक्विजिट जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अलग होती है। और इसीलिए सिर्फ IQ बेस्ड करियर कभी नहीं डिसीजन बनता है, और शायद ही कोई ऐसी IQ की रिपोर्ट बनी है जिसपे करियर वो बताए। और अगर वो बनी है तो आई डिफर कि वो एक्यूरेट नहीं होगी जब तक कि उसमें वो पर्सनालिटी का एलिमेंट नहीं डालेंगे। एंड रादर आई से कि सिर्फ आप पर्सनालिटी टेस्ट करा दो तो वो ज्यादा एक्यूरेट आपको करियर सिलेक्शन में करेगी। एंड वी हैव गॉट सर्टेन शॉर्ट टेस्ट्स आल्सो जो आपको करियर क्लस्टर तो बेसिक डिफाइन करके दे सकती है, लेकिन IQ इज रियली नॉट एट ऑल द पैरामीटर टू चूज अ राइट करियर। ठीक है, सो IQ हम लोग ज्यादातर क्लिनिकल केसेस के लिए करते हैं और लर्निंग चैलेंज जिसके लिए ही करते हैं, और दैट वर्क्स रियली वेल। बट वही है कि अगेन IQ के लिए लोग तभी आते हैं जब उनको लगता है, और हम भी उसको बहुत कंपलसरी नहीं करते। इसके बजाय हम लोगों ने दूसरी दो टेस्ट हैं जो ज्यादा हायर स्टैंडर्ड की है। वो है लर्निंग स्क्रीनर कि बच्चे की लर्निंग कैसी है, और दूसरा है गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस यानी कि बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस चीज में है। रादर ये दो टेस्ट आप प्रॉब्ली यंगर एज ग्रुप में कराइए बिलो 10 years, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा देन जस्ट गोइंग अ फ्लैट IQ। IQ is, although there had been lots of like list of tests I'll show कि जो हमारे पास में है, लेकिन IQ का केटरिंग क्लिनिकल जोन में ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसके कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। बाकी व्हेन इट कम्स टू उसका इम्प्लीमेंटेशन तो उतना खास नहीं है, एक्सेप्ट आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा या तो एग्जाम में आपको छूट मिलेगी मार्क्स के इफ यू आर डिसलेक्सिक। बाकी उसका कोई खास रोल कॉल है नहीं। गर्भ संस्कार इज वन ऑफ दोज 16 संस्कार जो मैंने बहुत टेस्टिमोनियली एक्सपीरियंस किया है कि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। इसका ट्रू एग्जाम्पल इस गर्भ संस्कार। इट्स अ काइंड ऑफ माइंडसेट बिल्डिंग, जिस माइंडसेट के साथ में आप जो चीज बनाने बैठते हो बन जाएगी। दैट अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, रूटीन प्लानिंग, डाइट प्लानिंग एंड एक्सपर्ट्स की एडवाइस, ये सबका एक बहुत बढ़िया 12 सेशंस है, लेकिन घंटे मेरे ख्याल से 36 आवर्स होंगे। ऐसा ये प्रोग्राम है जो हम बहुत खुश होंगे अगर हम ये भी कर पाए, बिकॉज एवरीवन नोज दैट इट वर्क्स। पर्सनल टेस्टिंग्स बहुत सारी है, ये है जो अलग अलग एज ग्रुप में मेरे ख्याल से आपके पास भी होगा इसका एक PDF कि ये टेस्ट है जो वर्कआउट की जाती है। उसके बाद बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर जो काउंसलिंग होती है, तो what we have seen is within 2 sessions depression goes on. You can experience with anyone, किसी भी डिप्रेस पर्सन को भेजिए 2 बार, दो बार, नॉट थर्ड सेशन वुड बी रिक्वायर्ड। Okay, so this is what we have achieved so far, the kind of expertise and result creation that we had been creating. And of course जब कोई केस मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर क्लिनिकल जोन में चली जाती है तो थोड़ा बहुत हम होम्योपैथी का भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आई एम बेसिकली अ होम्योपैथ, सो हम होम्योपैथी का भी मैनेजमेंट उसको एड ऑन करते हैं। उसके साथ साथ करियर अवेयरनेस हमारा जो पूरा रहता है मोटो ये सारी प्रोसेसेस करने का व्हेन इट कम टू करियर काउंसलिंग, तो हम करियर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। एक्चुअली हम करियर अवेयरनेस के साथ साथ उनका जो करियर को लेकर जो आउटलुक है ना वो भी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि सबको JEE करना है, पता नहीं क्यों करना है, जबकि IIT के लोगों को काम नहीं मिल रहा है और फिर भी उनको लगता है कि वो किसी XYZ इंस्टीट्यूट में काम करके या पढ़ के
कहीं कुछ बन जाएंगे। सो दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। हमारे पास जितनी इतनी पेंडिंग रिपोर्ट की इकट्ठी रखी है, इन सब में हमेशा कम से कम 2 इंजीनियर्स की रिपोर्ट रहती है काउंसलिंग के लिए कि अब वो क्या करें। सो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, सोशल ट्रैप पे नहीं जाना है। मैं बच्चों को यही बताती हूँ कि आप लोगों को प्लीज करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कोई करियर वरियर मत बनाओ। आप अपनी खुशी के लिए, अपने बेस्ट एबिलिटीज के लिए अवेयर हो जाओ। उसमें क्या स्ट्रक्चर्ड करियर बन सकता है वो मैं बताऊंगी, और आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर उस पर काम करो। पेरेंट को बोलती हूँ फुल्ली आप सपोर्ट करो बच्चे को, और बच्चा बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। सो बहुत अच्छे पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशंस हम देते हैं, और टेस्टिंग्स में भी कुछ मिड रेंज टेस्टिंग्स भी हैं। जो सपोज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हम उसके लिए भी ऑप्शन करते हैं। हम एनजीओज को भी अलग तरीके से कैटर करके जो है सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं। तो this is all about that we do. These are the people who are behind us and ourselves also. We've got certain overseas contributors, and Mishra sir and Bhavna madam had been always patronizing this. This is our team, which is very oldest one. These are franchisees. This is our trainer, star trainer. This is our HR. This is Ashwarya you have seen. These are like Amravati को हैंडल करने वाले, दिस आर स्पेशल एजुकेटर को हैंडल करते हैं मैडम। एंड ये साउथ अलग अलग जोन में काम करने वाले, और काउंसलर अभी तो ये यूएस से भी हैंडल करती है हमारी चीज़ों को। कुछ लोग बैंगलोर में भी हैं, और जो हमारे मेन काउंसलर्स हैं कहाँ गए हैं, ये है शी इज डॉक्टर अपर्णा साबू, शी इज वन ऑफ दोस एक्सपर्ट डीएमआईटी काउंसलर। एंड दी ओके, गीता मैडम का नाम अभी तक आया नहीं है, उनका भी आ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो देयर, ये थोड़ा पुराना है। सो व्हाट वी आर लाइक अनदर प्रोडक्ट। इन सब के अलावा जो अनदर प्रोडक्ट है वो है फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, कि अब सिंस डीएमआईटी इज अ फिजिकल टेस्ट, सॉफ्टवेयर पर भी होती है, लेकिन हमने अभी कल रोमानिया वाले बंदे को फिजिकल स्कैन्स लेने बोले। रोमानिया से कल परसों काउंसलिंग हुई हमारे यहाँ पे, तो उसको इस प्रोसेस से स्कैन्स लेने बोले, क्योंकि सॉफ्टवेयर से भी मन की वो है, हम नहीं ट्रस्ट कर सकते। तो फिजिकल है तो हमें जितना ज़्यादा फिजिकली प्रेजेंस मिलेगा अलग अलग जोन्स में, अलग अलग लोग इसको हाथ में लेकर काम करेंगे, तो ये प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट और बढ़ेगा और लोगों तक पहुंचेगा, और द काइंड ऑफ रियल डिफरेंस ऑफ थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट विल बी क्रिएटेड। सो जो हम चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ऐसे एंथुजियास्टिक लोग हमसे कनेक्ट हो, जो टीचर्स हो, जो डॉक्टर्स हो, जो पीडियाट्रिशियन हो, जो साइकोलॉजिस्ट हो, जो बिजनेस पीपल हो, जो नेटवर्कर हो, जो जो इसे ज्वाइन करें एज अ प्रोफेशन, एंड हम उनको एंड टू एंड सपोर्ट पूरा देंगे। एंड टू एंड सपोर्ट पूरा देंगे का मतलब ये होता है कि आप रिसर्च कर लो। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग के नाम पे, फ्रेंचाइजिंग फॉर्मेट या मेंटल हेल्थ फॉर्मेट के नाम पर आई डोंट थिंक कि एनीवन इज रियली डूइंग बिसाइड्स डीएमआईटी। डीएमआईटी की फ्रेंचाइजीज मिलती है, बाकी किसी चीज़ की कोई फ्रेंचाइजी मिलती नहीं है। ठीक है, बाकी सब जगह पे या तो एज अ वेंडर काम करते हैं या तो जो भी करते हैं। उसके बाद आप समझ लो कि अगर आपको आपके ब्रांड से काम करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है, डिजिटल, टाइम एंड एवरीथिंग। हम उनको सीधे वो पूरा डिजिटल अम्ब्रेला एज इट इज दे देते हैं। ये जो सारे लोग हैं इसमें से इन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन उनको वो पूरा 15 ईयर्स का मिल गया गुडविल बाय जस्ट कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नोयर टैलेंट। बट नोयर टैलेंट के अम्ब्रेला में हर कोई जस्ट पैसा देके नहीं आ सकता। उसको 2 चीजें होना कंपलसरी है, दैट इज एक्सेलेंस एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यानी एक्सेलेंट ही देना है और लॉन्ग टर्म पे काम करना है, तो ही इज मोस्ट वेलकम इन द अम्ब्रेला। फिर हम उसको कैसे भी करके शामिल करें इफ ही हैज अ काइंड ऑफ पैशन। ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट मनी दैट इज द क्राइटेरिया टू बी पार्ट ऑफ इट। सो हमें एंथुजियास्टिक चाहिए जो इस विजन के साथ अलाइन करते हैं, जो इस मिशन के साथ अलाइन करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग वेलकम करते हैं। और व्हाट डू वी डू इज कि हम उनको टोटल सपोर्ट देते हैं। अगर उसने बोल दिया, जैसे अभी मेरी कल सोलापुर के एक गांव से एक लेडीज से बात चल रही थी, कल ही कॉल हुआ उसके साथ में, अभी हमने आज उसको प्रपोजल भी भेजा कि उसको करना है वहाँ पे मिड ब्रेन और डीएमआईटी।
मैंने बोला भाई तेरे को कोई वेबसाइट नहीं बनाना, तेरे को कुछ नहीं करना, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस, डोंट वरी। मतलब वो उसने जो एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ सोचा भी नहीं होगा, वो सब कुछ हम देंगे। तुम बता दो कि ये स्कूल में मीटिंग है मैडम, यहाँ पे 2000 बच्चे हैं, हमारे लोग आ जाएंगे वहां पे डील बॉक्स कर देंगे। तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वी डू हैव एंड वी डू केटर, क्योंकि हमारे पास हिंगोली में भी है, हमारे पास में नासिक में है, हमारे पास दो पूना में है। तो वहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो चले जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना इसको स्पोकन हब मॉडल में हमने कुछ ऐसे सुपर सेंटर्स बना रखे हैं कि वहाँ के लोग उन लोगों को सपोर्ट और पुश दोनों कर देते हैं। ठीक है। तो ये कोई और कंपनी नहीं देती है। ज्यादातर कंपनीज को क्या होता है, या तो सॉफ्टवेयर बेच देना होता है या तो फ्रेंचाइजी बेच देनी होती है, बाद में उसको उसके हाल पे छोड़ देना होता है। आपने भी फ्रेंचाइजी कि भाई ये लो सॉफ्टवेयर, ये लो फ्रेंचाइजी, जो करना है करो। लेकिन नो वन लुक्स आफ्टर कि भाई बाद में आपका क्या हो रहा है, या कोई सपोर्ट। मैं तो बोलती हूँ सपोर्ट छोड़ो, वो अपना ब्रांड भी नहीं देना चाहते, बट हमें हमारे ब्रांड पे पूरा कॉन्फिडेंस है, और हम हैं उस ब्रांड के सहारे, हम आपको ऊपर ले आएंगे और साथ में ऊपर बढ़ेंगे। दिस इज वेयर वी आर डिफरेंट। दूसरा, टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग सपोर्ट है, सेल्स सपोर्ट भी है। अगर बिग डील है तो कुछ लोग आएंगे करके देंगे आपको डील क्लोज, आप सिर्फ नेटवर्क को एक्सप्लोर करवाओ, और वहां पर हैंड ऑन जो एग्जीक्यूशन है उस जोग्राफी का आप संभालो। दिस इज व्हाट डू वी एक्सपेक्ट। सो डिटेलिंग्स तो है हर फ्रेंचाइजी फॉर्मेट की, कैसे आपको शामिल होना है हमारे साथ में, पर हम उसको पूरा बिजनेस मॉडलिंग क्रिएशन करके देते हैं कि अभी उसका क्या सिचुएशन है, उसका क्या भी नहीं है, क्या रिसोर्सेस हैं, और इस हिसाब से हम उसका एसोसिएशन का फॉर्मेट डिफाइन करके देते हैं, ताकि वो एकदम, जैसे कल थी बोले मैडम मैं कितनी इन्वेस्ट करूँ मला माहित नहीं। अब तुम सोलापुर के भी एक इंटीरियर गांव में रह रहे हो, मैंने बोला मैडम आप 15,000 से ज्यादा मत इन्वेस्ट करो, बाद में आपको लगा तो आप अपग्रेड कर लेना। लेकिन वो, उसने जब बोला की मॅडम माझ्याकडे तो 40 पोरं ऑलरेडी आहे, म्हटलं किती पे करू शकतात ते डीएमआयटीला? तुम्ही बघा ना, तुम्हाला असा असायला पाहिजे की पहले 3 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट निकलना चाहिए। तो हम उसी हिसाब से इनिशियल बिजनेस मॉडल बना के देते हैं, और उसके बाद फिर उनको अपग्रेड करना होगा तो फिर वो कंडीशनली अपग्रेड करते हैं विद द रिन्यूअल ऑफ द अग्रीमेंट, क्योंकि प्रॉपरली साइंड अग्रीमेंट होता है, सर्विस एग्रीमेंट होता है, और उसके हिसाब से जो है सारी चीजें करते हैं। तो पेपर वर्क में हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो बिजनेस मॉडलिंग हम पूरी करके देते हैं, रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, उनका जो जो भी नया स्टाफ आता है उसको रेगुलरली ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, और अच्छा मार्जिन देते हैं, रिजल्ट्स इतने अच्छे देते हैं कि वो अच्छा ग्रो करते हैं, और उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी जो है वो भी और अच्छा हो जाता है। और सपोर्ट के लिए हम ऑलवेज देयर, क्योंकि सबका वही रहता है, सारे यही पूछते हैं को सपोर्ट कितना मिलेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। सो दे ऑलवेज वांट कि सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट हम हमेशा देते हैं, और अभी तक हमें बिना सपोर्ट नहीं दिया ऐसी कोई कंप्लेन आई नहीं है। ठीक है। सो आई 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 होप कि यू, आपको मार्केट प्राइस पता होगा ही कि अभी डीएमआईटीज की बेसिक जो फ्रेंचाइजी है वो ही 50,000 से शुरू होती है, बट हमने हर किसी के लिए हर चीज बनाई है। ठीक है। तो 1 लाख की स्टेट मोनोपोली रहेगी, उसमें फिर वो लेवल पर कोई नहीं रहेगा, और स्टेट का पूरा रेवेन्यू भी उसके थ्रू राउट होगा। ठीक है। तो इसलिए और वो फॉर्मेट ही इंटरनली हमने ऐसा बनाया है कि फिर अपने आप ही सारा स्टेट से आने वाला बिजनेस जो है उसके थ्रू राउट होगा। स्कैनिंग सॉफ्टवेयर स्कैनर के साथ साथ 50 प्रीलोडेड रिपोर्ट, अगर 4,000 रुपए की भी सेलिंग प्राइस समझते हैं तो 4 into 50 दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड देयर अमाउंट। ठीक है। उसके बाद में 900 पर रिपोर्ट्स, जो फर्स्ट हर महीने की पहली 15 केसेस के लिए 900 पर रिपोर्ट्स रहेगा, उसके बाद 500 आगे में सारी रिपोर्ट्स 500 के में ही चार्ज होगी। सारा मार्केटिंग मटेरियल, कंपनी लोगो, नेम, उसके राइट्स, रिटर्न राइट्स, अग्रीमेंट, सब कुछ हर चीज में अग्रीमेंट्स तो होगा ही। ठीक है। सारी चीजें, और 4,000 हम हार्ड कॉपी ब्रोशर्स भी प्रोवाइड करेंगे उनको। और स्टार्टअप का टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट पूरा पैन इंडिया ऑनलाइन ऑफलाइन, और अभी तो हम ओवरसीज भी देख ही रहे हैं। और हमारा जो भी नेटवर्क है, जैसे मान लो हमने केसी ओवरसीज के साथ अग्रीमेंट किया है, और अगर कोई अमरावती का है तो अमरावती ब्रांच अगर है तो उसके साथ भी हम उसको एसोसिएट करवा के देंगे। तो नेचुरली, और जो रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी आप देखोगे कि भाई इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लोग इतने कम हैं, मतलब टीम में दिखने वाले एटलीस्ट। तो वो इसलिए है क्योंकि हम जब भी कोई बिग डील आती है तो हम हमारे फ्रेंचाइजीज को काम देते हैं, जोग्राफिकली जो वहाँ पे है, या जो वहाँ पे जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से रन करता है तो वो लोग कर देते हैं।
तो उसके बाद में हम उनको पर डिस्ट्रिक्ट एक एक एसोसिएट बना के देंगे, जो कि बेसिक स्कैनिंग लेके आएगा उनके लिए और बिजनेस भी लेके आएगा। तो फ्रीलांसर्स रहते हैं जनरली वो एसोसिएट्स, लेकिन वो घूमते रहते हैं, उनके पास लैपटॉप रहता है, उनके पास स्कैनर रहता है, वो भी हम देंगे। और उसके बाद में वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कैनर के साथ में एक बंदा घूमेगा और वो जो है रिपोर्ट्स इनको लाके देगा। और सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस रहेगा। इंटेलिजेंस बिल्डिंग जिसका सीलिंग 30 to 50,000 है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जिसका 5 to 50,000 है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 to 50, मिड ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन जो है 5 to 50 अगेन, और काउंसलिंग सर्विसेज जो है 5 to 50 इसलिए बोले क्योंकि वो बनती है, बैचेस बनती है ना, इसलिए। काउंसलिंग सर्विसेज जो है 1,000 से 5,000 के बीच में, कोई भी IQ टेस्ट 2 to 5,000 के बीच में, मोर देन 90% एक्यूरेसी रेट हमेशा रहेगा। अनलिमिटेड फॉलोअप ट्रेनिंग रहेगी उनके स्टाफ की, ऑन साइट ट्रेनिंग रहेगी, वहां जाकर हम करके देंगे। और जो है बल्क लीड वगैरह कॉर्पोरेट लीड भी रहेगी उस एरिया की, वो उनको पास ऑन की जाएगी। ठीक है, सो ये होता है ये होता है बेसिकली जो स्टेट मोनोपोली के साथ साथ काम करता है। ये है डिस्ट्रिक्ट मोनोपोली 50,000 की। डिस्ट्रिक्ट मोनोपोली यानी कि नागपुर प्लस ऑल इट्स तहसील एंड गांव। सो वो वहां से बिजनेस राउट करेगा। यहाँ पे 15 किलोमीटर में तो नेचुरली हम लोग कोई और को नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको एक्सेस रहेगा सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने नीचे, सारे उसके जो तालुकाज है उसमें अपने लोग अपने अंडर लोगों को एसोसिएट करने का 6 महीने बाद हम खुद ही कर देंगे, या तो खुद कर ले। बाकी टेंजिबल जो सपोर्ट है 1,000 रुपीज पर रिपोर्ट हम लोग फर्स्ट 15 केसेस के बाद में 900 पर रिपोर्ट है। अब ये सिर्फ रिपोर्ट का प्राइसिंग नहीं है, आप समझ सकते हो, वो पूरी जो टीम और टेक्नोलॉजी उसके पीछे लगेगी उन सब का खर्चा है। 2,000 हार्ड कॉपी ब्रोशर भी हम देते हैं, बाकी सारी सॉफ्ट कॉपी। टोटल सपोर्ट वो एज इट इज, मीडिया से कंटेंट वगैरह भी, मतलब सोशल मीडिया में हम क्या करेंगे, सिर्फ कोलैब मारेंगे तो भी वो उनका चैनल चल निकलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू। कंटेंट क्रिएशन वगैरह सब कुछ हम ही दे देंगे। 10 फॉलोअप ट्रेनिंग देंगे हम इसमें, और कोई भी बल्क लीड रहेगी उसके एरिया की वो उसको ही देंगे, और एक प्रॉफिट शेयरिंग पर जो है वो काम होगा। 25,000 में कोई है जो तालुका प्लेस पर है, जो थोड़े कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है तो वैसे भी कर सकता है। यहाँ पे ये प्राइसिंग रहने वाली है, बाकी ऐसे एक्सेस उसको सब कुछ रहेगा, सिर्फ उसको पैसिव बिजनेस राउटिंग नहीं रहेगी, यानी कि नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। ठीक है, प्राइसिंग लगभग ज्यादा महंगी नहीं की है हमने। फ्री रिपोर्ट्स थोड़ी कम की है, क्योंकि एज यू नो दैट वी इट इज मच मोर दैट वी आर ऑफरिंग देम इन दी डाउनस्टेयर्स। सो 15,000 की भी है, एसोसिएट या चैनल पार्टनर की है, उसका इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन 15,000 की भी है, जहाँ पे जिसको हम एसोसिएट वर्कअप बोलते हैं। और उस एसोसिएट वर्कअप में हम लोग उन लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो चैनल पार्टनर की तरह होते हैं वो लोग। उनके पास में स्कैनर होता है, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है, और उसके साथ में वो स्कैन्स की बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं। सिंस कि वो 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लाइकली कि उनके पास में खुद का सेटअप या कुछ होगा नहीं, बट हाँ, अगर नागपुर में भी एसोसिएट है हमारे तो वो हमारा सेंटर पूरे तरीके से यूज कर सकते हैं, या बाकी भी और एक दो सेंटर्स हैं वो भी पूरे तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें आके बैठ सकते हैं, अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं, या जो भी ऑपरेट करना है तो देखिए यूटिलाइज होल इंफ्रा, जहाँ पे जो जो भी इंफ्रा होगा। तो एसोसिएट सारा काइंड ऑफ फ्रीलांसर जो उस एरिया के फ्रेंचाइजी के साथ में काम कर सकता है, उसके सेंटर को यूज कर सकता है और काम कर सकता है। सो दिस इज हाउ द अनदर और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इट इज। इसमें दो इंपॉर्टेंट B2B मैंने अभी भी नहीं बताए हैं। वो है ह्यूमन रिसोर्स वाला HR प्रोजेक्ट, जो मैंने बीच में थोड़ा सा डिटेल किया था कि हम करियर राइट टैलेंट एक्विजिशन, रिटेंशन और प्रोग्रेशन पर कॉर्पोरेट्स को हेल्प करते हैं, और सही हायरिंग को कैसे आगे रखना है, एम्प्लॉयज और अपने कंपनी का मेंटल हेल्थ कैसा बनाए रखना है, ये सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग देते हैं। ये एनुअल टाइप का भी प्रोग्राम हो सकता है, या फिर सिर्फ नीड बेस्ड रहेगा, कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी रह सकता है कि हमें 50 एम्प्लॉय का असेसमेंट और रिपोर्ट्स बना के दे दो, काउंसलिंग कर दो, जो जैसा रहेगा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड रहेगा। एंड अमाउंट कैन बी 50,000 to 5 lakhs or 50 lakhs, whatever it is. But we have enough of bandwidth to cater any and every size of project. So that's not the problem.
So that's how it is for Know Your Talent. So now over to you.